Good evening, everyone. This is Aparna Mishra, founder of Women Shine. Welcomes you all to hashtag WS Talks. Women Shine, as you all know, is a global digital magazine for women and lifestyle. We have now we are 17 editions old. We launched this during pandemic last year. So today we have in every talk sessions we bring in some personality who is doing amazing work in their own field. It can be various sectors as well. So today we have a guest over here who is into beauty segment, beauty and fashion, in fact. So we have our chapter lead, Jyotsna Wali over here, who will moderate the session. And we have got lined up various very interesting questions also for Preeti. So over to Jyotsna. Okay, good evening, everyone. So behind every strong man, there is a strong woman who stands behind him, supports him, and loves him with all her heart. We have with us Mrs. Preeti Yadav, an army officer's wife, who is a passionate crafter and a proud mom. She is a founder of the brand Craft Your Wishes, co-founder of a social initiative, Swavlambini, and also involved in many social activities. She is the founder and the curator of Mrs. Uttar Pradesh Queen of Virtue beauty pageant. So today, I welcome you to this show, Preeti. So Preeti, let's begin with the questions. So let me start by asking you about your journey of being a teacher to a beauty pageant winner, how it is like. First of all, thank you so much, Aparna and Jyotsna, for giving me this opportunity to come on your in your prestigious stage. So, Jyotsna, no doubt, it's amazing journey through a government teacher to a beauty pageant, and now I am organizing a pageant. So it's a different kind of. So see, Jyotsna, हर लेडी का एक सपना होता है एक दिन अपने सिर पे एक ताज को देखना. वो कोई भी हो सकता है, एक गरीब से गरीब लेडी भी हो सकती है और एक अमीर से अमीर महिला भी. ऐसा ही एक सपना शायद कभी मेरे भी मन में पला, और उस सपने को सच करने के लिए 2018 I participated in Mrs. Andaman and then I participated in Mrs. West India. अपने पैजेंट की जो जर्नी मैंने की उसमें मुझे बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों अनुभव मिले, और इन अनुभवों से मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी एक ऐसी फील्ड है जहां हम अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि विमेन्स को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, तो ये क्षेत्र भी है जहाँ पे विमेन्स को आगे बढ़ना चाहिए. और शुरुआत हमेशा अपने घर से, तो यूपी मेरा घर है, इसलिए शुरुआत वहां से. All right, interesting. So अब आप मुझे ये बताइए कि इस टाइटल ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया? How this has actually made an impact in your life and changed your life altogether? You're being a government teacher now to this place. You are a curator of a show actually today. Yes. So definitely बहुत ज्यादा ही वॉइस वर्सा चेंज किया. टीचर आपकी स्मार्टनेस, आपके इंटेलेक्चुअल से समझी जाती है, आपके नॉलेज से समझी जाती है, और उसके साथ साथ ब्यूटी पेजेंट में आना, और वहां जब आपकी उस नॉलेज के साथ साथ आपकी बाहरी सुंदरता को उतना ही नापा जाता है, और उसमें फिट बैठने के लिए अपने ओवरऑल फिजिक को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. बिकॉज आफ्टर प्रेगनेंसी, नो डाउट वो हर किसी की फेज होता है, और अराउंड 10 kg आई रिड्यूस माई वेट. एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा. मेरा एक हमेशा मानना है जोस्ना कि अगर या आप इस बात को मत सोचो कि आप इससे क्या मिलेगा, या आप जीत रहे हो या हार रहे हो. आपके लिए ये करना बहुत जरूरी है कि आपको ये करना ही है. अगर आपने अपनी लाइफ में अगर ये सोच लिया है कि आपको ये चीज करनी है अपनी लाइफ के लिए, तो अपनी लाइफ के उस हर पल और हर दिन को काउंट करो. तो वो मैंने हर दिन काउंट किया. Well said. I think where there is a will, there is a way. तो आपके अंदर एक will थी ये अचीव करने के लिए. Right. Okay. Yes. अच्छा, one more thing I just want to know, because we have been seeing these posts on Facebook about Mrs. Uttar Pradesh Queen of Virtue. So what exactly is Queen of Virtue? जैसे मैंने अपनी बात में बोला कि
आपकी एज ए टीचर आपकी इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपका नॉलेज नापी जाती है। ऐसे ही मेरे हिसाब से क्या आप दुनिया के किसी भी अच्छे पेजेंट को लोगे तो वहां पर सिर्फ बाहर की सुंदरता नहीं, आपकी नॉलेज के हिसाब से ब्यूटी विथ ब्रेन काउंट किया जाता है। और ब्यूटी विथ विदाउट ब्रेन की ब्यूटी वेस्ट है। और उस ब्रेन में जब तक वर्च्यू ना हो, गुण ना हो, तो वो और भी वेस्ट है। आपके पास ब्रेन है, नॉलेज है, लेकिन उसका सही से उपयोग अगर नहीं हो रहा है, अगर सही से उसको आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, उसको वो गुण नहीं है उसको कैरी करने का, तो भी वो वेस्ट है। That's why it's a queen of virtue. Okay, that's really nice, and I hope you will get your queen of virtue for Mrs. Uttar Pradesh finale. We are right? touching. Yes, actually, आपने ये यूपी से ही क्यों स्टार्ट किया? Like because as you said, it's a hometown. तो आपका और भी आगे plans है इसको पैन इंडिया ले जाने के लिए? Being an army officer wife from last 11 years, I roam around all over India, all over world, here and there. लेकिन आप जहाँ के होते हो वो जगह आपसे कभी नहीं छूटते। मैं आज भी अपने आप को कुछ भी कहलाने से पहले एक टिपिकल यूपी गर्ल कहना बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, गर्व महसूस करती हूँ। मुझे कभी कुछ नहीं लगता कि यूपी के बारे में कौन क्या कहता है और क्या सोचता है। मेरे लिए हमेशा यूपी नंबर 1 थी और नंबर 1 है। इसलिए जब भी बात शुरू हुई कि मुझे अब मैंने और भी लाइक बिंग एंड क्राफ्टर, मैंने पिछले 5-6 साल में अपना ये कंपनी क्राफ्टर विशेस खड़ी करी, इस पे बहुत काम किया। लेकिन जब एक नई टर्न की अपने करियर में घुमाने की बारी आई तो मुझे लगा कि मेरा घर मेरा जरूर साथ देगा, इसलिए शुरुआत मेरे घर। Okay. So after this Mrs. Uttar Pradesh, what are you planning after this? जैसा मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलती हूँ कि मैं प्लान करती हूँ लेकिन देखती सिर्फ इतना हूँ जितना मेरी नजरें देख सकती हैं। एज एफ नाउ मेरी नजर सिर्फ क्वीन ऑफ वर्च्यू मिसेस उत्तर प्रदेश पे है। अगर भगवान ने चाहा और हमारी टीम की मेहनत रंग लाई, हमने इसको अच्छे से किया जैसा हमारा प्लान चल रहा है, और हम लोग हर दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको सक्सेस बनाने के लिए, और बहुत खुशी होती है कि लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये बहुत अच्छा आगे बढ़ता है तो नो डाउट क्वीन ऑफ वर्च्यू पैन इंडिया जाएगा। Sure. Of course it will go. All right. I just want to know, as you already told me about the brand like Craft Your Wings, it is I think something related to crafting, right? तो आप अपनी और किन प्रोजेक्ट्स में आप अभी आज you are associated with, like your Craft Your Wings, and there's also one social initiative, Swavlambini. So tell me something about it. Yes, Craft Your Wishes is my third baby. Why second baby? Why not second baby? Because first baby already I have a Daksh. Then my husband is also another baby. Then Craft Your Wishes. So Craft Your Wishes always I nurture as a baby. Like starting से मेरा हमेशा होता है कि वर्ड से लेके कॉन्सेप्ट से लेके उसकी शीट कहाँ से पड़ी, सब कुछ मेरे बहुत ओरिजिनल होते हैं। इसको भी मैंने 5 साल पहले जब इसको शुरू किया था उस समय हैंड क्राफ्ट आइटम्स थे, लेकिन आई एम अ डेकोपाज इन मिक्स मीडिया दे आर फ्रेंच आर्ट। तो यहाँ पर इंडिया की इसकी मार्केट नहीं थी। इसको समझाने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए भी मुझे उतना ही टाइम लगा। मैंने अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा टाइम उसको समझने में, आई वेंट टू थाईलैंड टू लर्न ऑल द थिंग्स। मुझे जो भी करना था उसको डीप में जाके करना था और मैंने उसको किया। एक अच्छा खासा खैर नाम कमाया, कंपनी खड़ी की, अच्छी तरीके से किया। एज एफ नाउ वो थोड़ा सा पॉज में है क्योंकि मेरा पूरा डिवोशन, पूरा डायरेक्शन अभी मिसेस उत्तर प्रदेश पे है। लेकिन बिंग एज ए वंस अ आर्टिस्ट ऑलवेज ए आर्टिस्ट, तो लाइफ लॉन्ग ये चलेगा। अब कुछ ना कुछ होता रहेगा। Okay, great. No, obviously everything should go. I mean, you are a multitasker. You should get involved in everything. I have seen your yes. projects like Swavlambini. Tell me something about it. What exactly it is? Swavlambini is a marvelous project. Why it's marvelous? Because now
बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मैंने जब इसको 5 साल पहले शुरू किया, और मेरी इस 5 साल की जर्नी में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स लेडीज आए, और उनका हमेशा एक बड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन होता था कि हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट माई सेल्फ, हाउ टू, मतलब मुझे खड़ा कैसे करना है। उन्हें पता है कि उन्होंने चीज बना ली है, उन्हें पता है कि मुझे इसे सेल कर। I think we lost touch, some network error. So let her join again. Okay. Some yeah, some technical glitches, you know, जितना हम डिजिटल पे जा रहे हैं उतना हमारे टेक्निकल ग्लिचेस भी होते जा रहे हैं. So just she's just joining in some time. Okay. तब तक अगर लोगों ने, आई थिंक काफी लोगों ने अप्लाई किया होगा इसका, हमारे काफी कैंपेन्स देखे होंगे मिसेस उत्तर प्रदेश के. सो वी आर कमिंग अप विद द फिनाले वेरी सून. सो जो भी होगी डेट्स हम अनाउंस कर रहे हैं. लखनऊ में इसका फिनाले होगा सेंट्रम होटल में, और सो बी देयर. काफी इंफॉर्मेशन रहेगी. यू लाइक द पेज ऑफ मिसेस उत्तर प्रदेश, एंड so that you are updated on everything जो भी हो रही है उसमें चीजें. So there are lot of things which are happening there. तो काफी लोगों ने अप्लाई भी किया उसमें. ओके, नाउ शी इज जॉइनिंग अगेन. ओके. I'm really very sorry for that. So I was talking about स्वावलंबनी. So जो मेरी उस एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट हुई थी, और लेडीज मिलते गए और चीजें होती गई, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आया कि इसको सेल कैसे करना है, हैंडक्राफ्टेड चीजें हैं या हमारे छोटे बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है. तो को एक स्टेज और बड़ी कंपनीज हैं या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से उनको विजुअलिटी ज्यादा मिल सकती है, वहां पे उनको फोकस कराता है, उन्हें डाइवर्ट कराता है. तो इस तरीके से वो उन छोटे या मीडियम स्केल विमेन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करता है मेन स्ट्रीम के साथ लिंक करने की. उन्हें किस तरीके से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेंटेन करना है, कैसे उन्हें क्लाइंट के साथ डील करना है, ऐसी मास्टर क्लासेस दिलवा के, ऐसी कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लाते हैं, क्लासेस लाते हैं और उनके साथ काम करते हैं. Okay, that's really nice. I mean, actually, आप हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं. That's really nice. You know, आपको लोगों को women empowerment के लिए छोटे-छोटे effort ही आगे जाके बहुत helpful हो जाते हैं. Okay, coming back to Mrs. Uttar Pradesh, because that is our agenda today. I would like you to tell me more about like the experience, like auditions के experience, how everything is going on. We are coming back with the finale में हम आ ही रहे हैं almost in December. So just share something about it. The whole Mrs. Uttar Pradesh. I think we've lost her. Is she there? Concept. Yeah. Okay. So जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को सोचा था कि मिसेस उत्तर प्रदेश करना है, तो बहुत होमवर्क किया था मैंने कि यूपी में जो इवेंट होते हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं. मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि मिसेस उत्तर प्रदेश होता नहीं है, होता है, बिल्कुल होता है. और बहुत सारी इवेंट कंपनीज हैं जो कराती हैं और कराती आएंगी, लेकिन क्या डिफरेंस है उनमें और मेरे मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू में? बहुत बड़ा डिफरेंस है. डिफरेंस है मेरी सिंसियरिटी का, जो मैंने उसमें दी है. मैंने दिया है अपना पूरा डिवोशन, सब कुछ, कि अगर वहां से एक एक पार्टिसिपेंट, जो सिर्फ विनर ही नहीं, जो भी पार्टिसिपेंट फाइनलिस्ट जा रहा है, उसे वो मीडिया कवरेज या वो प्लेटफॉर्म्स मिले जिसके लिए वो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म को चूज किया है.
जब मैंने शुरुआत करी थी, बहुत लोगों ने बोला था वेस्ट है, बेकार है, क्योंकि ऐसे होते रहते हैं, लोग इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे। लेकिन आज एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ और अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ हम तैयार हैं और 19 दिसंबर को ब्लास्ट करने वाले हैं। लखनऊ क्या, पूरा यूपी देखेगा कि मिसेज उत्तर प्रदेश हमारी पहली कितनी जोर शोर से आ रही है और यूपी पे राज करने वाली है। ये चीजें सिर्फ एक दिन की नहीं होती, हमने बहुत एफर्ट करे हैं, एक अच्छी टीम बनाई है। जैसे कि जोया अफरोज खुद मिस इंडिया 2013 रह चुकी हैं एंड अभी 2020 में उन्होंने मिस इंटरनेशनल का क्राउन जीता है। जो लेडी खुद विनर है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को साबित कर चुकी है, वो अब मेंटोरिंग कर रही है। अमन वर्मा जी जो किसी को पहचान का मोहताज नहीं है, वो इसके एंकरिंग करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रीति कुमार जी, जिनको तकरीबन 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है पेजेंट जर्नी में, वो डाइन एंड वाइन एटिकेट्स जैसी क्लास लेने वाली हैं कि जब हमारे फाइनलिस्ट अगर किसी पार्टी को भी अटेंड करते हैं तो उनको कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, इसकी छोटी छोटी बारीकियों तक की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। हमारी फिटनेस से लेके हमारे लिए, हमारे फौज में बोला जाता है ना कि ट्रेनिंग जब तक हार्ड नहीं होती ना तो आप युद्ध में उतना ज्यादा खून बहता है, तो आपकी ट्रेनिंग उतनी हार्ड और कमांडो टाइप होनी चाहिए और उसकी पूरी तैयारी हमने कर रखी है। इस ट्रेनिंग के जरिए, इस चीजों के जरिए हम इस प्लेटफॉर्म को और प्लेटफॉर्म से अलग बनाएंगे कि यहाँ से निकली हुई एक सिंगल फाइनलिस्ट भी अपनी एक अलग पहचान और अपना अलग दायित्व रखे। ओके, ग्रेट। प्रीति जी, आप एक और बात मुझे जस्ट गिव मी द क्लियरिटी, किस दिन फिनाले है, उसके पहले की क्या राउंड्स है, हाउ यू आर लाइक व्हाट इज द फिनाले प्रोसीजर? जी, अभी 12 से 13 और 14 नवंबर को हम एक ऑफिशियल कैलेंडर शूट करने वाले हैं, जिसको भी रोनी कोला, जो कि सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं एंड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट सारे नहीं, मिलके इस कैलेंडर शूट को करने वाले हैं। ये दिल्ली में होने वाला है। जब ये कैलेंडर शूट हो जाएगा उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और इन ऑनलाइन क्लासेस के बाद 16 को हमारी मेन फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगे। इन 16, 17, 18, 19 इन 4 दिन की जर्नी में मैंने जब ऑडिशंस लिए हैं ना ज्योत्सना, तो मोस्ट ऑफ द लेडीज क्या होता है कि अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतनी आ जाती हैं या उन पर इतना फैमिली प्रेशर होता है कि मैंने एक पार्टिसिपेंट से पूछा कि आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपको हम कुछ टाइम दे दें। आप वो बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि मेरे हस्बैंड, ये मेरे बच्चे। मैंने कहा आप हस्बैंड और बच्चे को छोड़ दीजिए, हम आपके बारे में सिर्फ बात करते हैं और आप बताइए अगर आपसे बोला जाए कि आप क्या करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। तो वो बोले कि मुझे कुछ टाइम मिल जाए जहाँ पे ना हस्बैंड हो ना बच्चा हो, मैं अकेले घूमना चाहती हूँ, मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, वो भी अकेले। ये इतना जेन्युइन आंसर था जो शायद एक हर लेडी के मन में होता है कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, वो मी टाइम चाहिए। और वो मी टाइम, वो उनका टाइम, वो 4 दिन में उनके लिए मिलने वाला है। वो 4 दिन वो हमारे साथ रहेंगे, एक एक दिन एंजॉय करेंगे, एक एक दिन में सीखेंगे। पहले दिन आ रहे हैं वो पोर्टफोलियो शूट करेंगे। एक मॉडलिंग का एक पहला स्टेप जो पोर्टफोलियो शूट होता है उसको वो फेस करेंगे, कैमरा फेस करेंगे, टैलेंट राउंड होगा, कॉकटेल पार्टीज होगी। नो डाउट अगर हम हार्ड सेशंस करा रहे हैं तो उनकी मस्ती का भी पूरा इंतजाम करके रखेंगे कि वो उतना ही एंजॉय करके जाए, वो 4 दिन उनकी जिंदगी के मेमोरेबल डेज बन के जाए। तो ये 4 दिन 16 to 19 हम इनकी ट्रेनिंग कराएंगे। 19 को हमारा फिनाले होगा जहाँ पे जो भी फाइनलिस्ट हैं सबको उनकी योग्यता के अनुसार हम सब टाइटल्स से भी नवाजेंगे और उसके साथ साथ विनर रनर अप्स के क्राउन्स भी होंगे जिनको दिया जाएगा और किया जाएगा। Great, amazing. आपका जो schedule is really amazing, and I think everybody who has qualified for the auditions, they are actually going to outshine this event.
and आपकी मेहनत actually रंग लाएगी. One last thing, tell me, is there any auditions left for this month so that जो अभी I think ये live देखने के बाद जो motivate हो जाए, so maybe they apply for the event. Yes, so they is there can. any auditions left? Yes, they can. हमारा नेक्स्ट ऑडिशन जो है वो 10th नवंबर को है और उसके बाद हम एक ऑडिशन 15 से 16 के बीच में रखेंगे. ये हमारे लास्ट ऑडिशंस होंगे क्योंकि इसके बाद हमारी फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं. तो आपके पास अगर आप स्टिल अभी सिर्फ सोच ही रहे हो कि आपको करना है पार्टिसिपेट, तो ये आपका लास्ट चांस है. और 10th एंड 15 आप ये लास्ट गाड़ी पकड़ सकते हो. Okay, great. So I would request everyone who's watching and who will watch this video after this session, they please, if you are interested, come out of your comfort zone and just apply, because I think these are online auditions, right? Yeah. So because of COVID precautions हमने ये सारे auditions online रखे हैं. आप हमारी वेबसाइट है www.mrsuttarpradesh.com, वहां जाकर डायरेक्ट अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपके रजिस्ट्रेशन जैसे ही हमें मिलेंगे हम आपको, हमारी टीम आपको सारे ऑडिशन डिटेल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करा देगी और आप उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं. All right, great. It was really great. आपने बहुत डिटेल में बताया. I hope everybody who really wants to come, still you have time, you can apply because it is going to be the mega show, I guess. 16, 17. Yes, exactly. अगर अभी तक आपसे सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि 20th के न्यूज़पेपर में जब आप देखोगे तो रिग्रेट करोगे कि हमने इसका पार्ट कैसे नहीं हुए. तो ये रिग्रेट होने से पहले इसको कर लीजिए, पकड़ लीजिए. Right. I wish you all the luck and I wish yes बहुत अच्छा event निकले. I will be there to see, witness it. Yeah, definitely. You both are cordially invited. No, मतलब invite करने की जरूरत नहीं है. You are a part of Mrs. Uttar Pradesh. You are Women Shine is a magazine partner for us. So definitely आपका तो होने बिना हमारा शो हो ही नहीं सकता. आपका तो होना बहुत ही जरूरी है. All right, thank you so much. I just over to Aparna. Yeah. Of course, we sign off. Preeti, I would like to tell you, like जब आपके ये rounds होंगे, जब 16, 17, 18, I would like कि आप हमारे Facebook live, हमारे मतलब Women Shine के पेज पे live करिएगा, so that people should know. हम 20 तारीख का एनी टाइम आप कभी भी आ सकते हैं. हमें तो 16 से धमाल मचाना है कि ये इवेंट हो रहा है लखनऊ में. वेरी वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट, नो? टू हैव. अगर मैंने ये बोला है आपसे कि अब मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ऐसा अच्छा शो है, बड़ा शो है, अब तो शायद ये 1 साल पहले जब मेरा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में भी आया था तब भी लोगों ने बोला कि मैम तुम पे विश्वास क्यों करें, लेकिन मैंने कुछ तो खड़ा किया है जिसको आप सब महसूस कर सकते हो. तो मेरे उस सपने को भी उसके भी साक्षी बनिए और आइए. और डेफिनेटली मैंने जो ग्रेट और ग्रैंड शो का सपना देखा है, हमारी टीम जो बहुत दिन रात मेहनत कर रही है उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और हम बिल्कुल अच्छा करेंगे. बाकी रिजल्ट जैसे चुनावों के रिजल्ट निकलते हैं उसी तरीके से आएंगे और हम शायद फ्लाइंग कलर से पास हो. बिल्कुल. Of course. You, Preeti, to the finale, to the great efforts, and really thank you so much for taking out time, because I know आप